پاکستان کی جو دھرتی ہے اس نے بہت سارے دانشوروں کو جنم دیا ہے اور ان کے کام کی دنیا معترف ہے. ان میں ایک بہت بڑا نام ہے اکبر ایس احمد صاحب کا. انہوں نے اپنا سفر تو بیوروکریٹ کے طور پر شروع کیا تھا، لیکن پھر انہوں نے اختیار سے زیادہ علم کی طرف توجہ دی اور علم کی طرف وہ چلے گئے. تعلیم و تصنیف کے شعبے سے منسلک ہو گئے. جو پاکستان کی بڑی زبردست فلم تھی قائد اعظم کے حوالے سے، جناح دا مووی، وہ بھی انہی کی کاوش تھی، انہوں نے ہی لکھی تھی. اور اس کے علاوہ مختلف کتابیں انہوں نے لکھی ہیں پاکستان کے، لکھے ہوئے ہیں. بالکل پاکستان کے سفیر رہے ہیں مختلف ممالک میں، اور امریکہ یونیورسٹی میں اس وقت وہ پروفیسر ہیں. بالکل. اور عالم اسلام کے جو مسائل ہیں، پاکستان کی جو صورتحال ہے، اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. آج ہم ان سے بات کرتے ہیں. ہمارے پروگرام میں شامل ہیں پروفیسر ڈاکٹر اکبر ایس احمد صاحب. السلام علیکم سر. السلام علیکم. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو چونکہ اب آپ پاکستان میں بہت وقت آپ نے گزارا، ساری زندگی یہیں کام کیا، یہیں خدمت کی قوم کی، اور پھر آپ چلے گئے اوورسیز پاکستانی بن گئے. تو ایز اوورسیز پاکستانی جب آپ باہر سے بیٹھ کر ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آج کل کے حالات میں کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی کے جو پاکستان کے لیے اپنے دل میں بڑا درد ہے اس کو اور پیار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑی تاریخی موڑ پہ کھڑا ہے. پاکستان بحیثیت ایک قوم، ایک نیشن، اور دو راستے سامنے. ایک راستہ ہے ڈیموکریسی کا، کانسٹیٹیوشن، ہیومن رائٹس، لا اینڈ آرڈر، ویمنز رائٹس، مائنورٹی رائٹس، اور قائد اعظم کے جو تین بڑے مشہور لفظ تھے، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. اور دوسرا راستہ بالکل برعکس، اپوزٹ ہے، آمریت، لا اینڈ آرڈر پرابلمس، خون خرابہ اور کرائسس. تو پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کس راستے پہ جانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا پھر آگے جا کے بہت امپلیکیشنز ہے قوم کے لیے. اور یہ قوم بہت ہی اہم قوم ہے، معمولی قوم نہیں ہے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ مسلم نیشن, 240 million people. It is nuclear. It is in a very important geopolitical situation in ایشیا. ایبسلیوٹلی. لیکن سر اب جب پاکستان جو ہے وہ اپنے حوالے سے جب ڈیسیشن کرے، یا پھر یوں کہیے کہ خطے کے باقی ممالک سے جب تعلقات کی بات کرے یا فورن پالیسیز کے فیصلے کرے، تو کیا چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کو سامنے رکھنی چاہیے؟ جو تجزیہ لینا ہے اپنے مستقبل کا، اپنی ڈیسٹنی کا، اپنی تشخص کا، آئیڈینٹی کا، اٹ مسٹ بی ان دا کانٹیکسٹ آف گریٹ پاور رائیولری، جو پولیٹیکل سائنٹسٹ کہتے ہیں گریٹ پاور رائیولری. اب آپ دیکھیں پاکستان کے ارد گرد گریٹ پاورز ہیں. ایک طرف چین ہے، ایک طرف روس ہے، ایک طرف انڈیا ہے جو اٹس این ایمرجنگ گریٹ پاور، ایٹ لیسٹ ریجنل پاور. اور آف کورس یونائٹیڈ اسٹیٹس جو پاکستان کے ساتھ اٹ ہیز اے ویری اسپیشل ریلیشن شپ. سو ود ان دیٹ پاکستان کو اپنا ایک راستہ پیدا کرنا ہے which will ensure its maximum security and maximum prosperity for its people. So it isn't کہ وہ ایک ویکیوم میں کام کر رہا ہے. پاکستان is in a very difficult situation and has to navigate this way ahead. لیکن ڈاکٹر صاحب وے اہیڈ ہمارا ہوگا کیا؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے کس طرف جا رہے ہیں جب آپ باہر سے بیٹھ کے اس وقت کی پاکستان کے اندر کی سیاسی صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ایک ہی راستہ ہے and I hope the leaders of Pakistan will take that road. At this moment there is a big crisis. پاکستان میں بہت بڑا کرائسس ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. وہ جو ہم نے سینز دیکھے ٹیلی ویژن پہ، رونا آتا ہے. جو لوگوں کے گھر پہ حملے ہو رہے ہیں، نیشنل مونیومنٹس پہ حملے ہو رہے ہیں، عورتوں کے بالوں کے ساتھ گھسیٹ رہے ہیں پبلکلی ویڈیو پر. یہ تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ میں امیجز دیکھوں گا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستانی اپنے انسٹیٹیوشنز پہ، اپنے لوگوں پہ حملے کرنے. اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ ڈبیٹ چل رہی ہے الیکشنز ہو یا نہ ہو. ایک ہی راستہ سامنے پاکستان کے. They must declare a date for elections. They must hold the elections. اور جو بھی نتیجہ ہے they must accept it. یہ 1971 کا جو کرائسس تھا، 71 کا، ہسٹورینز کہتے ہیں کہ یہ تھا، وہ تھا، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے. کرائسس واز آف الیکشنز. 1970 میں الیکشنز ہوئے، مجیب الرحمان جیتے and they should have got the government. لیکن دی پاور ایلیٹ آف پاکستان said no, ہم ان کو حکومت نہیں دیتے، ان کو ہم اقتدار نہیں دیں گے، ہم اپنے مٹھی میں رکھیں گے. and result was civil war and break up of Pakistan. So I'm not saying کہ exact situation ابھی ڈیولپ ہے پاکستان میں،
What I'm saying is that there is a crisis, there is a solution. Solution is hold the elections, fair and free elections, और जो भी जीते, let them solve the problems of Pakistan. Pakistan के बड़े problems है, economic problems है, law and order problems है, federation problems है. A government has to solve them. ये government, या the next government, या the elected government, but they have to be solved, and it can only be solved through elections. So the people of Pakistan feel, yes, we have participated. जो आपका मामूली आम आदमी है सिंध में या बलूचिस्तान में या पंजाब में, फ्रंटियर केपी प्रोविंस में, वो ये महसूस करे कि जी हाँ हम पाकिस्तानी हैं, हमने अपना वोट दिया और अब हम फैसला देखते हैं और हम इस हुकूमत के पीछे हैं कि आगे बढ़े और हम सबको ऊंचे ले जाए. तो सर आपके ख्याल में वैसे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने कभी भी जमहूरियत का जो सही एसेंस है उसको समझा है? देखिए ये बड़ा अहम सवाल है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख इज अ काइंड ऑफ स्ट्रगल. आप देखें, अगर एनालाइज करें, मैं तो एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ, आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जद्दोजहद मुसलसल इट इज़ टुवर्ड्स डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी चलती है, हुकूमत आती है, 5-6 साल चलती है और इट इज़ टॉपल और मिलिट्री रूल स्टार्ट्स. तो पाकिस्तान हिस्ट्री इज़ मूविंग बिटवीन डेमोक्रेसी एंड मिलिट्री रूल. तो पाकिस्तान को फैसला करना है, जैसे मैंने कहा था, दो जो रास्ते हैं, कौन सा रास्ता अख्तियार करना है. और अगर ये डेमोक्रेटिक पाथ नहीं लेता पाकिस्तान तो फिर बहुत पीछे रह जाएगा. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान ये फैसला करे और आगे बढ़े जुर्रत के साथ, कॉन्फिडेंटली और सिक्योर अबाउट द फ्यूचर. बिकॉज ये स्ट्रगल ये आजकल के दौर की नहीं है, ये मुस्तकबिल की है. जो आपकी पाकिस्तानी आबादी है ज़्यादातर यंग पाकिस्तानी से, ये दुनिया में इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट पॉपुलेशंस. इनका आप सोचें, इनकी कैसी दुनिया होगी 20 साल 30 साल के बाद. ये ओवर पॉपुलेटेड मुल्क होएगा, लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे और ग्रेट पावर राइवलरी चारों तरफ पाकिस्तान को घेरे हुए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यंग जनरेशन आपकी तालीम याफ्ता हो, अवेयर हो ऑफ द वर्ल्ड और इंटरेक्शन विद द वर्ल्ड करने को तैयार हो कॉन्फिडेंटली एज पाकिस्तानीज विद पैट्रियोटिक हार्ट्स एंड विद क्लियर विजन कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारी आइडेंटिटी है और हमें आगे कैसे जाना, कहाँ जाना है. तो सर आगे बढ़ने के लिए आपके ख्याल में पाकिस्तान के कौन से 3 ऐसे इश्यूज हैं जिन पर के हंगामी बुनियादों पर काम करने की हम सबको जरूरत है? मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी नई नस्ल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट है वो है तालीम. तालीम पे अगर हम नहीं एम्फसाइज करेंगे तो हमें बहुत इसका नुकसान होगा. और मुझे तो ताज्जुब होता है, आप देखें हमारा मज़हब है मेजॉरिटी का इस्लाम, और इस्लाम में इतनी एम्फसिस है ऑन तालीम. ये कुरान शरीफ में बार बार इल्म का जिक्र है. इट इज़ द सेकंड मोस्ट यूज्ड वर्ड इन द होली कुरान. आप सोचें, पूरे कुरान शरीफ में अल्लाह ताला अगर चाहता तो कहता कि ताकत हो और पैसा बनाओ और जो भी है, बार बार कुरान शरीफ कहता है इल्म 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 को हासिल करो. इल्म इतना इसका दर्जा है कि ये इबादत के लेवल के इसकी अहमियत है. तो अब आप हकीकत देखें, पाकिस्तान की हकीकत ये है कि हम इतना कम खर्चा करते हैं तालीम पर. औरतों के लिए तो देयर इज वर्चुअली नो एजुकेशन. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देयर सम वेरी एजुकेटेड एंड वेरी ब्रिलियंट women and young men in Pakistan, but मैं कह रहा हूँ ओवरऑल, आप ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देखें तो पाकिस्तान इज वेरी 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 लो ऑन द इंटरनेशनल स्केल. तो हमें इसकी तरफ तवज्जो करनी है. वी हैव टू एजुकेट द यंग जनरेशन, फुली इस पे एम्फसिस करें. और साइंस, IT, ऐसी डिसिप्लिन जो जदीद हैं, जो इनको तैयार करें कि दुनिया के साथ ये इंगेज करें और मुकाबला करें, वरना बहुत पीछे रह जाएंगे. और मैं तो एक प्रोफेसर की हैसियत से बोल रहा हूँ ऑन कैंपस. मैं देखता हूँ हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं पाकिस्तान से, बड़े ब्रिलियंट होते हैं, बड़े हार्ड वर्किंग हैं, लेकिन उनका बड़ा डिसएडवांटेज होता है क्योंकि वो कम्पीट कर रहे होते हैं और स्टूडेंट से जिनको ऑलरेडी ये फैसिलिटीज मिली हुई है. तो हमें ये नेक्स्ट जनरेशन को ये फैसिलिटीज देनी है ऑफ टॉप एजुकेशन. और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो अगले 5 से 10 सालों में आप उसे कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं डिस्ट्रिक्ट्स में रह चुका हूँ बहैसियत कमिश्नर, पॉलिटिकल एजेंट, डिप्टी कमिश्नर, और मेरे लिए इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सोसाइटी, स्पेशली पाकिस्तान. अब ये मेरा मंतक आप फॉलो करें. इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रायोरिटी है जो पाकिस्तान गवर्नमेंट देती है, हर गवर्नमेंट, ये प्रेजेंट गवर्नमेंट बार बार एम्फसाइज कर रही है इकोनॉमिक ग्रोथ.
previous government economic growth, उससे पहली government economic growth. लेकिन economic growth it cannot function in a vacuum. जब मैं डिस्ट्रिक्ट में था मैं देखता था कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर नहीं है जो स्टेट है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेसमैन है, वो बहुत ही रिलक्टेंट है अपना पैसा लगाने के लिए इन एन इंडस्ट्री. बिकॉज वो कहता है मैं पैसा लगाऊंगा, कल को कोई मेरे वर्कर्स को या मेरी चौकीदार को अगवा कर लेगा या हमला कर देगा मेरी फैक्ट्री पर, तो मेरा नुकसान होगा. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू हैव लॉ एंड ऑर्डर, टू हैव क्रेडिबिलिटी इन द डिस्ट्रिक्ट्स. उसके बाद आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं. अब आप देखें, एक मिसाल देता हूँ मैं आपका, जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था है, आई होप अभी तक है, बिकॉज उस पर भी क्वेश्चन मार्क लोगों ने कहा है, दैट इज दी बेल्ट, चाइना बेल्ट रोड, बेल्ट एंड ये जो आपका दिस हाईवे के अलॉन्ग जो प्रोजेक्ट था, चाइना प्रोजेक्ट इन ग्वादर. अब ग्वादर में बार बार ये किस्से होते हैं कि कभी चीनी को अगवा कर लिया, कभी हमला कर दिया, कभी स्ट्राइक्स हो रही हैं. इससे चाइना भी घबरा गया है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी घबरा गए और पाकिस्तानी भी घबरा गए. सो लॉ एंड ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और स्पेशली लोकल लोगों को, जो लोकल अवाम है. अब जैसे बलूचिस्तान में, ग्वादर में लोकल लोग हैं, मैं तो वहाँ रह चुका हूँ, मकरान में एज कमिश्नर, और बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े तालीम याफ्ता हैं, बड़े उनमें हुनर है और अवेयरनेस है दुनिया की. उनको आप इन्वॉल्व करें कि भाई तुम्हारे लिए फ़ायदा है इसका, इसमें तुम्हारा ये फ़ायदा है, प्लीज़ पार्टिसिपेट एज पार्टनर्स. और जब तक ये नहीं होएगा और अगर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम रहता है तो तरक्की नहीं हो सकेगी. तो मेरे लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उससे पहले इट मस्ट बी लॉ एंड ऑर्डर. इट इज़ लाइक द हॉर्स एंड द कार्ट. जो आपने मुहावरा सुना है कि जब आपका घोड़ा है वो कार्ट को खींचता है, लेकिन आप कार्ट घोड़े के सामने नहीं लगा सकते, वरना वो कार्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ेगी. तो हम जो करते हैं पाकिस्तान में, वी पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स. सही है, बिल्कुल सही है. और डॉक्टर साहब, अब बाहर की दुनिया में इस वक्त जब लोग बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में, तो उनके माइंड में पाकिस्तान का क्या तासुर होता है? क्या वो बाहर से देखकर पाकिस्तान के बारे में परसीव करते हैं? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप अपना इमेज बनाती हैं, पाकिस्तान का इमेज जो दुनिया में जाता है, दुनिया में देखा जाता है. और बदकिस्मती से पाकिस्तान का इमेज जनरली अच्छा नहीं है, ये मैं आपको कह देता हूँ. और मैं कहता हूँ लिटरली जो मेंबर ऑफ दी फैमिली. और क्यों नहीं अच्छा है? जो खबरें होती हैं दुनिया में, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है नहीं सही है, मैं कह रहा हूँ कि दुनिया में जो छापते हैं लोग खबरें, वो पाकिस्तान के ताल्लुक से बस सिर्फ नेगेटिव होती हैं. किसी ने किसी पे हमला कर दिया, किसी को मार दिया, कोई वायलेंस है, कोई औरत पे जुल्म हुआ. अभी मुझे मेरे दोस्त हैं डॉक्टर जेम्स शेरा, क्रिश्चियन लीडर हैं ये पाकिस्तानी इन ब्रिटेन, उनका फ़ोन आया कल कि उनके चर्च पे गुजरांवाला के हैं और बड़े मुहब्ब वतन है, बड़ा उनको प्यार है पाकिस्तान से, खुसूसन कायदे आज़म से. और अभी उनको अवार्ड भी मिला है पाकिस्तान में. तो इनके गांव में गिरजा है गुजरांवाला, और उस पर हमला हुआ है, लोगों ने हमला किया उसको. ये बड़े उनको मायूस थे, कहने लगे कि देखो इंडिया में ये हो रहा है, ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं, अब ये पाकिस्तान पे शुरू हो गया. ही वॉज वेरी अपसेट. तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर पाकिस्तानी से, जो एहसास उसको ये होना चाहिए कि वो वैक्यूम में नहीं रह रहा है. पूरी दुनिया देख रही है पाकिस्तान को और स्क्रूटनाइज कर रही है एक मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे. जो चीज़ निकलती है पाकिस्तान से वो बाहर दुनिया में उसको उठाती है, और अनफॉर्चुनेटली अगर नेगेटिव होती है तो उसको फिर और उछालती है. अब आप देखें अभी ये जो रिसेंट हुआ है, अब आई एम नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, लेकिन आप अपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अदालत में गिरफ्तार करते हैं, उसको धक्के लगाते हैं, थप्पड़ मारते हैं, और उसके साथ जो सलूक करते हैं, दैट इज़ नॉट हाउ सिविलाइज्ड कंट्रीज बिहेव विद देयर लीडर्स. अच्छा है बुरा, ही इज़ योर लीडर, जो भी है, वेदर इट्स हिम और नवाज शरीफ है, जो भी लीडर आपका, अनलेस यू हैव अ सिविल डिस्कोर्स अगेंस्ट सिविल इज्जत और एहतराम से आप एक दूसरे को ट्रीट ना करें, तो उसका फिर नतीजा ये होता है कि दुनिया में लोग कहते हैं कि देखो ये पाकिस्तानी है. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वी मस्ट अप्रिशिएट, रिस्पेक्ट. कायदे आज़म का ये हाल था कि जब वो महात्मा गांधी जब असैसिनेट हुए, कायदे आज़म ने 4 दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ग्रेट महात्मा गांधी, ग्रेट. तो मतलब है दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर दैट वी मस्ट कॉपी, टू रिस्पेक्ट ईच अदर एंड बिहेव ईच अदर, सो दैट यंग जनरेशन फील्स कि हाँ इस मुल्क में, इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में हमें आगे बढ़ना है. सर फाइनली जो कि कायदे आज़म की बात है, तो क्या इस नेशन को मैसेज देंगे, या यूँ कहिए कि कायदे आज़म का हमारे लिए सबसे अहम पैगाम क्या था?
कायदे आजम के लफ्ज यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, इनको ना छोड़ें, याद रखें और सामने रखें। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। प्रोफेसर डॉक्टर अकबर एस अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, वन ऑफ द लीडिंग इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द वर्ल्ड, और पाकिस्तानियों के लिए फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान से उनका ताल्लुक है, लेकिन बस ऐसे लोगों से फ़ायदा उठाना ज़रूरी है, ऐसे लोगों से मिलना, ऐसे लोगों से बात करना और ऐसे लोगों को समझना। और जिन्ना साहब के ऊपर जितना काम इन्होंने किया है, वो बच्चों की जो इन्होंने किताब लिखी है कॉमिक बुक की फॉर्म में बच्चों के लिए कायदे आज़म के ऊपर, वो इतनी खूबसूरत, इतना कमाल का काम है, हर घर में वो किताब होनी चाहिए। एक जिन्ना साहब के और एक फिर इस्लाम के हवाले से जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं इन्होंने बाहर की दुनिया के लोगों के माइंड में जो हैं, वो भी बहुत कमाल काम है, उसके लिए भी इनको खराजे तहसीन देना बनता है।